بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ بچوں، ہم نے پڑھا تھا سر سید کے اخلاق و خصائل، سبق نمبر 3 ہے سال اول کا۔ کل ہم نے اس کا خلاصہ پڑھا تھا۔ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی اور ماخذ ہے حیات جاوید۔ سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل صنف ادب کے لحاظ سے خاکہ ہے۔ بچوں، آج ہم اس کے مشقی سوالات جو ہیں وہ دیکھیں گے تاکہ ہم اس کی جو مشق ہے اس کو اچھے سے یاد کر سکیں۔ کل ہم اس کا خلاصہ پڑھا تھا۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ سر سید کے اخلاق و خصائل کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی پڑھا کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ ان کے مصنف ہیں۔ یہ مضمون کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل کا ماخذ جو ہے وہ حیات جاوید ہے۔ سر سید کو کون سا پھل مرغوب تھا؟ سر سید صاحب کو آم بہت مرغوب تھے پھلوں میں۔ سر سید کی مرغوب غذا کیا تھی؟ کھیر، دال، گوشت یا جو مل جائے؟ تو سر سید صاحب جو بھی مل جائے وہ خوشی خوشی کھا لیا کرتے تھے۔ سر سید کھانے کے بعد کیا پیتے تھے؟ سر سید صاحب جو تھے وہ ہمیشہ کھانے کے بعد آدھا کلو دودھ پیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی۔ اس کے بعد ہے کہ مختصر جوابات دیں۔ کیا سر سید خطوں کے جواب باقاعدہ دیتے تھے؟ تو مصنف کے بقول سر سید خطوں کا جواب دینے میں نہایت فیاض تھے۔ کسی بھی مرتبے کے انسان کا خط ہوتا فوراً اور باقاعدہ جو تھا وہ جواب دیا کرتے تھے۔ خط کا جواب دینے میں وہ دیر نہیں کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، کیا سر سید کو مہمانوں کی آمد جو تھی وہ ناگوار گزرتی تھی؟ سر سید کے دسترخوان پر ہر وقت دوستوں اور مہمانوں کا ہجوم رہتا تھا، تو ان کو مہمانوں کی آمد کبھی بھی ناگوار نہ گزرتی تھی، بلکہ اگر ان کے دسترخوان پر کسی دن مہمان نہ ہوتے تو کھانا کھانے کا لطف نہ آتا، اور جس دن زیادہ مہمان ہوتے تو ان کے گھر عید کا سماں ہوتا تھا۔ سر سید کی شخصیت کا نمایاں ترین پہلو کیا ہے؟ سر سید کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا، لیکن ظرافت اور خوش طبعی ان کی جبلت میں داخل تھی۔ کسی بھی بات کرنے کا خدا نے انہیں ایسا سلیقہ دیا تھا کہ کوئی بات تہذیب کی حد سے متجاوز نہ ہونے پائی تھی۔ محنت اور جفاکشی بھی جو تھی وہ ان کی نمایاں خوبیوں میں سے تھے۔ خود ان کے اپنے بیان کے مطابق دائمی غور و فکر اور دماغی محنت نے ان کی عقل کو جلا بخشی تھی، ورنہ ذہانت کے لحاظ سے وہ اپنے ہم چشموں سے زیادہ ممتاز نہ تھے۔ سر سید راست بازی کو کیا سمجھتے تھے؟ سر سید احمد خان راست بازی کو اپنا دین اور ایمان سمجھتے تھے۔ سر سید خود بھی راست بازوں کی دل سے قدر کرتے تھے۔ سچائی جو تھی وہ سر سید کی خاص صفت تھی۔ ان کی آزادانہ تحریروں سے اردو ادب میں سچائی اور آزادی کی بنیاد پڑی۔ لکھنے والوں کو بھی یہ حوصلہ ملا کہ سچ لکھتے ہوئے دوسروں کی طعن و ملامت سے خوف نہ کھائیں، اور اس بات کا خیال کیے بغیر کہ کوئی ان سے متفق ہے یا نہیں
सच बात डंके की चोट पर कह देते थे। सर सैयद का दोस्तों के साथ बर्ताव कैसा था? सर सैयद का दोस्तों से बर्ताव बहुत निराला था। इनकी खुशी बल्कि इनकी ज़िंदगी का दारोमदार काम और दोस्तों की मुलाकात पर था। वो फिलवाके दोस्तों को ज़िंदगी का एक अहम उनसर समझते थे। मुखलिस दोस्तों के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे। नवाब मोहसिनुल मुल्क कहते हैं कि मैंने सर सैयद जैसी सच्ची मोहब्बत और वफ़ादारी दुनिया में कहीं नहीं देखी। वो मोहब्बत करना और इसे निभाना जानते हैं। जिनके साथ एक दफ़ा उनका ताल्लुक़ हो जाता था, चाहे वो कोई मुलाजिम हो, इससे कभी ना बिगाड़ते थे और इसके ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ तक सुनना गवारा ना करते थे। सर सैयद को कौन सा फल पसंद था? सर सैयद साहब को फलों में आम और खरबूजे जो थे वो नहायत पसंद थे। सर सैयद खाने के बाद अमूमन क्या पीते थे? सर सैयद साहब खाना बग़ैर एतराज़ के खा लेते थे। तरकारियाँ, आम, खरबूजे हर चीज़ पसंद थी। खाने के बाद आधा किलो दूध जो था दोनों वक्त पीते थे। इनकी आदत थी कि खाने के बाद दूध ज़रूर पीना। सर सैयद ने मुताले की आदत कब से अपनाई थी? सर सैयद ने मुताले की आदत जो है इब्तिदा यानी अपने बचपन से ही अपनाई थी। बचपन से ही वो मुताले के बहुत शौकीन थे। मुतालिया सिर्फ़ मुसन्निफ़ के ख़यालात से आगाही के लिए करते थे और अहम बातों पर निशान लगा लिया करते थे। सर सैयद ने खुतबाते अहमदिया पर जो है ये किताब कितनी मुद्दत में लिखी? सर सैयद साहब ने खुतबाते अहमदिया 1.5 साल के अरसे में मुकम्मल की। कौन सी बात सर सैयद को सबसे ज़्यादा नागवार गुज़रती थी? सर सैयद को सबसे ज़्यादा जो बात नागवार गुज़रती थी वो ये कि इन पर रास्तबाजी के ख़िलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, यानी इनको अपनी सच्चाई के ख़िलाफ़ अगर कोई बात कही जाती थी वो सबसे नागवार गुज़रती थी। सवाल नंबर 3 है कि मतन को पेश नज़र रखकर खाली जगह को पुर करें। सर सैयद को अपने कुनबे से हद से ज़्यादा लगाव था। सर सैयद फितरतन आली ज़र्फ़ और आली हौसला थे। सर सैयद अपनी बातों से बड़ों बल्कि बच्चों को भी तस्ख़ीर कर लेते थे। सर सैयद मजहबी तासुब से पाक थे। सच बात कहने में किसी की तानो मलामत से ना डरें। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। इसके मश्की सवालात। सबक नंबर 3, सर सैयद के इखलाक व खसाइल, जिनमें उन्होंने सर सैयद साहब की जो शख्सियत है उसका खाका हमारे सामने पेश किया है। इसके अहम नकात जो हमने पहले भी पढ़े थे कि सर सैयद के दस्तरख़्वान पर हमेशा जो था वो दोस्तों और मेहमानों का हजूम रहता था। खाना खाने में कोई ऐब नहीं निकालते थे, बग़ैर एतराज़ के खाना खा लिया करते थे। फलों में आम और खरबूजे बहुत पसंद थे। खाने के बाद आधा किलो दूध पीना जो था वो इनकी आदत थी। फितरी तौर पर ये हंसमुख और खुश तबा इंसान थे। मज़ाक में हद तहज़ीब से तजावुज़ ना करते थे। मुताले के भी जो थे वो बचपन से ही शौकीन थे और मेहनत व जफाकशी इनकी नुमायाँ खूबियाँ थी। इसी तरह से रास्तबाजी जो थी वो इनकी ख़ास सिफ़त थी। जब काम से फ़ारिग होते थे तो हंसी और दिल लगी भी कर लिया करते थे। इसमें बच्चों, बूढ़ों, अहबाब मुलाज़मीन, अंग्रेज़ों, हिंदुस्तानियों में कोई तफरीक ना करते थे। उनकी अच्छी सेहत का राज ज़िंदा दिली था। उनकी गुफ्तगू जो थी वो बच्चों और बूढ़ों सब का दिल मोह लेती थी। उनकी आज़ादाना तहरीरों से उर्दू अदब में सच्चाई और आज़ादी की बुनियाद पड़ी। दोस्तों के साथ इनका बर्ताव नहायत अजीब था।
मुखलिस दोस्तों के साथ मिलकर खुश होते। नवाब मोहसिन अल-मुल्क कहते हैं कि इनमें सर सैयद में सच्ची मोहब्बत और वफ़ादारी दुनिया में कहीं नहीं देखी। सरचश्मी और फ़राग़ हौसलगी इनके नुमायाँ और साफ थे। इन्होंने कभी अपनी कमाई से अपने लिए माल इकट्ठा नहीं किया, ना ही अपनी औलाद के लिए जायदाद बनाई, बल्कि मुस्तहक़ीन की मदद करते थे। उनकी हमदर्दी और फ़याज़ी की मिसाल बिल्कुल एक दरख्त की मानद थी, जो अपने फल से, अपने साए से और गर्ज़ अपनी लकड़ी से हर पहलू से लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है। मुखालफीन और दुश्मनों की बुराइयों को तहम्मुल से बर्दाश्त करना भी उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। नेक और आक़िल माँ ने भी अपने बेटे को ये बात सिखा दी थी कि बुराई करने वालों के साथ बुराई करना ख़ुद को वैसा ही बनाने के मुतरादिफ है। लिहाजा उन्होंने अपनी कौम को ख़ार ज़िल्लत से निकालने के लिए अपना तन मन धन जो है वो कौम की नज़र कर दिया। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़े हैं इसके मश्की सवालात के जवाबात, इसकी खाली जगह और MCQs। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों, अगर इसका ख़ुलासा आप अच्छे से एक दफ़ा याद कर लें तो इसके मश्की सवालात आपके लिए याद करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। कल को आपकी खिदमत में नए सबक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए